So let's start the class. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all of would be fine by the grace of Almighty Allah. I would request to Mr. Junaid. Junaid, are you there? Yes, Junaid Naeem Sahab. It's my humble request that please turn on your mic. Okay, Junaid Naeem Sahab left the meeting. So, chance given to some other person. Wait, Moise, please. Okay, Ariba Muhammad. Ariba, are you there? Abdul Moise, please. Abdul Moise, please turn off your mic. Okay, I am facing an issue in listening your voice. So please keep your mic turned off and let me start the class. So, what we studied yesterday, students, we were talking about accounting cycle and accounting period. And Alhamdulillah, we have finished these 2 points of SLO. Now, today, what we are going to discuss, let me show the presentation. Today, we are going to study with a Word file. Is it visible? Are you able to watch the... Okay, thank you. Accounting terminologies. Okay, thank you so much. Thank you so much, students. Ariba, I think there is a problem at your site. Your internet is not working properly. So it is might be possible. You should rejoin the meeting. Okay. So my dear students, what we are going today, what we are going to do today, we are going to study accounting terminologies. These are the few common words which we will use in accounting frequently, regularly. So let's start. Some of the terms which are mostly used in accounting with some explanation are given as follows. Number one is transactions. Because unfortunately, I am unable to listen your voice. I don't know where the problem is, and I am facing the problem from the first unit. I have informed our IT department. Inshallah, it will be resolved soon. But please, if you share your views, your ideas in chat box. Okay, Eman? I do. Okay, wait. Let me rejoin the meeting.
Now am I audible? Okay. Thank you. Okay, students. So what is transaction? Have we studied earlier this word? Okay. So Minal said exchange of value. Fatma, what is your view about transaction? Kareem says exchange of value. Record of trade. Abir says record of trade. Okay. So my dear students, Alhamdulillah, we have studied the word transaction, and transaction means Aman said give and take of something that has value. Excellent. किसी भी ऐसी चीज का लेन देन जिसकी वैल्यू हो, उसके लेने और देने को, उसके एक्सचेंज करने को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन. ठीक है. सो we should move to the next word, which is merchandise. Merchandise is also called goods. What is the meaning of merchandise? Would anyone like to explain? Abir, would you please like to explain what is the meaning of merchandise? Abir said the goods. Sir, all the goods Sale. available. Excellent. Please do not Retail preference. Abir. Thank you so much. Okay. So, my dear students, देखें बात यह है कि वो दुनिया का कोई सा भी सामान, मर्चेंडाइज की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है. देयर इज नो सच पर्टिकुलर डेफिनेशन इन एनी बुक. मर्चेंडाइज मीन्स एनीथिंग इन द वर्ल्ड विच हैज वैल्यू, और आप and you are going to purchase it for the purpose of resale. आप दुनिया में कोई सी भी चीज खरीदें इस इरादे से, इस इंटेंशन से that you want to sell it to another person, तो उस चीज को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम कहते हैं मर्चेंडाइज, गुड्स. फातिमा आप बताइए, इज इट क्लियर? अब्दुल मोइस आप बताइए, इज इट क्लियर? व्हाट इज मर्चेंडाइज? व्हाट इज गुड्स? Goods are those things which we purchase for the intention to sell it. Okay. Yes, any type of thing which, but the thing should have value. ऐसा नहीं. देखिए, तहा ने पूछा कैन दे बी एनी टाइप ऑफ गुड्स. यस, मैंने कहा ना दुनिया की कोई सी भी चीज, बट देयर इज अ कंडीशन, द थिंग शुड हैव वैल्यू. अब ऐसा नहीं है, तहा मेरी बात समझिएगा प्लीज. मैं आपको थोड़ी सी मिट्टी उठा के दूं ऐसी जमीन पे से, सही है, और बोलूं लाइए 1 लाख रुपए दे दीजिए, 2 लाख रुपीज पे कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर क्या हो गया, मिट्टी की भी कोई कीमत है, आप मुझसे मिट्टी के पैसे मांग रहे हैं. ठीक है. तो आई होप इसी तरह मैं एक रजिस्टर से एक कागज को टेयर करता हूं और मैं वो कागज आपको देता हूं और कहता हूं लाओ लाओ भाई ताहा, मुझे 5 लाख रुपीज का चेक बना के दो, ये मैंने आपको कागज दिया है. तो आप कहेंगे सर इस कागज की मेरे लिए क्या वैल्यू है. ठीक है, सही. हाँ, तो वो फिर वो स्टैंड किस पर्पस के लिए? डेफिनेटली वो, मैं जर्नल बात कर रहा हूं अबीर, बात को समझने की कोशिश करें. मैं कह रहा हूं मैंने ऐसे ही आपके सामने से रोड पे से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, मैं आपके होम कंस्ट्रक्शन के लिए, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं ला रहा सैंड. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर. ठीक है मेरा बच्चा. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. हफ्सा, बिल्कुल, आई विल डेफिनेटली आंसर योर every question, but we will try to
And what if we are consuming it instead of reselling it? तो मैं इसका जवाब दे रहा हूं, तवज्जो से सुने जरा, इत्मीनान से ना, पेशेंस का मुजाहरा कीजिए। महक, इफ यू आर परचेजिंग समथिंग, बिल्कुल शास, मैं रिपीट करता हूं प्लीज, पहले मैं महक के आंसर, क्वेश्चन का आंसर करूं। जी एमन प्लीज वेट कीजिए, मेरी बात सुनिए। महक कहती हैं कि सर, अगर हम कोई चीज परचेज करें और हम उसे कंज्यूम करें, तो इसका मतलब है अब कंज्यूम किस लिए किया जा रहा है महक, किस मकसद के लिए? अगर आप अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप बिजनेस नहीं कर रही हैं, आप कोई चीज खरीद के लाती हैं और अपने घर में कंज्यूम करती हैं, तो ये तो बात ही नहीं हो रही बिजनेस की। वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट बिजनेस। तो मेरा बच्चा, बात यह है कि जब आप कोई चीज खरीद के लाएं और उसे कंज्यूम करें, तो it should be clear that what activity are you performing. Are you doing a manufacturing business? अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रही हैं, तो आप मुख्तलिफ चीजें खरीद के लाती हैं, आप उन्हें कंज्यूम करके एक प्रोडक्ट बनाती हैं, आप उन चीजों को कंबाइन करके उन्हें इस्तेमाल करके एक प्रोडक्ट बनाती हैं, तो इसका मतलब है वो तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया। एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी manufacturing business in our intermediate program. I hope you are clear. Are you, महक? Are you clear? Okay मेरा बच्चा, अब बताइए रिपीट क्या करना है, शाह, सलीम एंड एमन। अच्छा, आपने लिख के ही बात करनी है, क्योंकि आज मेरे माइक में बहुत प्रॉब्लम है, माइक से मुराद मेरे स्पीकर में बहुत प्रॉब्लम है, मुझे आवाज नहीं आ रही है। तो आप लोग प्लीज, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज डू नॉट टर्न ऑन योर माइक, और जो बात है वो आप यहां लिखें। आयान, मेरी वॉइस तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है स्टूडेंट्स को और कोई इशू नहीं आ रहा, तो इसलिए बस मुझे आप लोगों की आवाज जो है वो थोड़ी सी नहीं आ रही है, ये एक प्रॉब्लम है आज। अच्छा, मैंने कहा एमन कि मर्चेंडाइज या गुड्स दुनिया के किसी भी सामान को कहा जा सकता है, बस कंडीशन ये है कि आपने वो सामान खरीदा हो इस इरादे से कि आप उसे उसी हालत में बेचेंगी। फिर दोबारा कह रहा हूं एक बार, शाज अब आपके लिए बोल रहा हूं, दुनिया की कोई सी भी चीज, एक लैपटॉप, एक कीबोर्ड, एक माउस, एक सोफा सेट, एक बिल्डिंग, एक जनाब रजिस्टर, कोई भी दुनिया की चीज आप परचेज करें, और क्यों करें? क्योंकि आप उसे उसी हालत में बेचना चाहते हैं, तो उस सामान को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग मर्चेंडाइज और गुड्स कहा जाता है। सही है एमन और शाज, अब आप दोनों क्लियर हैं? शुड आई मूव फॉरवर्ड? मोहम्मद शुएब, डेफिनेटली द नेक्स्ट वर्ड इज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और मैं इस पे आ रहा हूं मेरा बच्चा, ठीक है? क्या ख्याल है? तो पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए ना मेरा बच्चा, है ना? बिल्कुल इसको डिस्कस करेंगे हम। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसे लेफ्ट कर दूं? नहीं ना? ओके। तो प्यारे बच्चों, द नेक्स्ट वर्ड इज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री? ओके एमन, मोस्ट वेलकम मेरा बेटा। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री? एनीवन नोस? प्लीज शेयर इट। ओके ओके ओके, थैंक यू। देखें, शाज ने बड़ा अच्छा और एक नॉर्मल वर्ड यूज किया, स्टोरेज। स्टॉक मींस हमारे पास किसी सामान का जखीरा, किसी सामान की बहुत सारी क्वांटिटी। बिल्कुल, अक्सा भी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप सब लोग बहुत अच्छा लिखते हैं माशाल्लाह, लेकिन मुझे ना बहुत लेमैन स्टाइल में बात करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे साइंस के प्यारे प्यारे स्टूडेंट यहाँ मौजूद है ना, बैकग्राउंड वाले, और वो कॉमर्स में कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे इसलिए इस तरह से बात करनी पड़ती है। मुझे पता है मेरे कॉमर्स के चैंपियंस बोर होते हैं थोड़े से, बट इंशाल्लाह एक बार मैं अपने प्यारे बच्चों की बेस अच्छी सी बना दूं, तो फिर मैं इंशाल्लाह F-16 उड़ाऊंगा अपने बच्चों के लिए, ठीक है? ओके, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हैं आप, बिलीव मी।
और बाकी लोग जो पढ़ रहे हैं डेफिनेटली, अगर वो इन कमेंट्स को पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें समझ आ रहा होगा अल्लाह के हुक्म से। द मर्चेंडाइज नॉट सोल्ड इन वन अकाउंटिंग ईयर, अबीर वेल डन। इसी तरह अ प्लेस यूज्ड टू स्टोर योर मर्चेंडाइज बिफोर सेलिंग। अच्छा, अब मैं कह दूं मेरा बच्चा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज का जखीरा, मर्चेंडाइज इन वेयर हाउस। सर तो क्यों होता है जखीरा? अरे मेरा बच्चा, अगर मैं एक स्टेशनरी शॉप ऑपरेट कर रहा हूं तो क्या मैं एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन, एक रजिस्टर, एक बुक खरीद के लाऊंगा? नहीं ना। इस सारे सामान का बहुत सारा स्टॉक, स्टॉक इन्वेंट्री बल्क में खरीद के लाऊंगा। और जब बल्क में परचेज करके लाऊंगा मेरा बच्चा, तो क्या जरूरी है कि सारा का सारा सामान एक ही दिन में बिक जाए? नहीं, हो सकता है कि सामान वन अकाउंटिंग पीरियड में ना बिक सके। एक अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड कितने वक्त का होता है मैक्सिमम? वन अकाउंटिंग पीरियड मैक्सिमम 12 मंथ्स का, 1 ईयर का मेरा बच्चा। तो एट द एंड ऑफ 12 मंथ, एट द एंड ऑफ ईयर 1, जो सामान हमारे पास बच जाए। अच्छा सर, क्या ईयर एंड पे ही? नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं अपना प्रॉफिट और लॉस, अगर मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली बना रहा हूं, कल वाली बातें याद है ना? अब लिंक हो रही हैं बातें और आहिस्ता आहिस्ता लिंक हुआ करेंगी इंशाल्लाह। तो अब आपने समझना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा हूं एट द मंथ एंड, एट अ क्वार्टर एंड, बाय एनुअली, तो फिर क्या होगा मेरे बच्चों? मैं 3 मंथ्स के एंड पर देखूंगा मेरे पास कितना सामान बचा हुआ है। अगर मैं मंथली बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहा हूं, सर इट मींस कि ऑल द आइटम टू बी सोल्ड आर केप्ट एज स्टोरेज आर कॉल्ड मर्चेंडाइज। देखें, अब मैं इसको क्लियर करता हूं, फिर जब मैं आपसे अपनी बात मुकम्मल कर लूं फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है मेरा बच्चा? इसका मतलब ये हुआ कि एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ क्वार्टर, एट द एंड ऑफ बाय एनुअल, or at the end of year, the goods which remain in your hand, the goods which remain in your godown and are not sold to customer, those goods are called merchandise inventory. अब बताइए मुझे, क्लियर हुआ या नहीं? यस, उसे स्टॉक भी कहते हैं आयशा, लेकिन स्टॉक एट एंड, सही है, स्टॉक एट स्टार्ट एंड स्टॉक एट एंड। और मेरा बच्चा, स्टॉक के साथ एक लफ्ज और लगाना पड़ेगा आयशा, आपके लिए कह रहा हूं स्पेशली, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, ये है मर्चेंडाइज का पूरा नाम। क्योंकि स्टॉक का वर्ड आगे जाके आपको कंफ्यूज कर देगा सेकेंड ईयर में। स्टॉक जो है वो शेयर को भी कहा जाता है। मिस नाजलीन पढ़ाएंगी ये बात आपको, शुएब दोबारा कहता हूं, स्टॉक इन ट्रेड, STOCK, स्टॉक इन TRADE, ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड मर्चेंडाइज को कहा जाता है, वो स्टॉक, वो जखीरा जो ट्रेड, तिजारत के लिए आपके पास मौजूद है। स्टॉक का, सिर्फ स्टॉक का वर्ड जो है वो कंफ्यूजिंग हो सकता है मेरे बच्चों के लिए। वाई? बिकॉज इन अमेरिकन लैंग्वेज स्टॉक इज यूज फॉर डिनोटिंग शेयर। शेयर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी, ठीक है? तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, हम दो तरह की इंग्लिश बोलते और फॉलो करते हैं, आप सब ये बात जानते हैं, एक ब्रिटिश है और एक अमेरिकन है। तो मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए। अक्सर सेड यस्टरडे मोस्ट बिजनेस मेड देयर क्वार्टरली अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द गुड नॉट सोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड क्लोजिंग इन्वेंटरी। यस एग्जैक्टली, ओके ठीक है शुएब, आगे बढ़ूं? इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। द नेक्स्ट वर्ड इज परचेजेस। आरिफा को भी समझ आ रहा है? ओके, वेल डन। अच्छा, जुनेद साहब तो चले गए, और राविया, इज इट क्लियर टू यू? ओके मेरा बच्चा। साहिल सेठ, सर एग्जाम्पल बता दें इन्वेंट्री की। बिल्कुल बता देते हैं साहिल भाई, जरा गौर से सुनिएगा। मैंने एग्जाम्पल में कहा कि मैंने एक स्टेशनरी शॉप खोली है, मैं स्टेशनरी खरीदता और बेचता हूं।
तो जो स्टेशनरी ईयर एंड पर, अगर मैं ईयर एंड पर अपने प्रॉफिट और लॉस मालूम कर रहा हूं, जी मशहूद अभी आपका क्वेश्चन लेता हूं, वेट कीजिएगा, पहले मैं साहिल को अपना जवाब दे दूं, ठीक है। तो जो स्टेशनरी मेरे पास ईयर एंड पर बच जाएगी, जो नहीं बिक सकेगी इस साल, मैं उसे कहूंगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। और वो क्योंकि ईयर एंड पर होगी तो उसका प्रॉपर नाम बनेगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, और जब वो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे ट्रांसफर होगी तो उसे कहेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मर्चेंडाइज का जखीरा, सही है, मर्चेंडाइज का स्टॉक, मर्चेंडाइज इन बल्क क्वांटिटी। ओके, अब साहिल के बाद फिर अबीर ने तो कहा, मोहम्मद मशहूद आपको कुछ कहना है मेरा बेटा, प्लीज जी बताइए। अच्छा आप लिखेंगे मेरा बच्चा, ठीक है, बोलिए। अबीर said purchases are expenses of purchasing merchandise for resale। जी बिल्कुल अबीर, बहुत तेज चल रहे हैं अबीर भाई आप। जी मशहूद, इज देयर एनी क्वेश्चन? अच्छा मशहूद सेट, क्या आपका मशहूद, तो ये आप मुझे ईमेल पे भेज देते ना मेरा बेटा, ईमेल पे ये बात कह देते। आप उस ईमेल आईडी से खोलिए मशहूद, जिससे यूट्यूब पे आप उसी ईमेल आईडी को यूज करें जो आप के कॉलेज की आईडी है। अगर आप किसी और आईडी से यूट्यूब पे खोलेंगे तो वीडियो नहीं खुलेगी। मैं एक बार दोबारा चेक कर लूंगा, आप क्लास के बाद मुझे ईमेल कीजिए, सही है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, चेक कर लेंगे मशहूद क्लास के बाद, ठीक है, कॉलेज खत्म हो जाए उसके बाद आप मुझसे पूछ लीजिएगा आफ्टर 12:30, ठीक, ओके। आप अपनी स्क्रीन शो कर दीजिएगा यहां आकर, सही है, हमको, मैं आपको लिंक भेज दूंगा और फिर हम एक छोटी सी मीटिंग कर लेंगे 10 मिनट्स की, 5 मिनट्स की, ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों परचेजेस क्या है, अब मैं एक काम करता हूं, मैं मौका देता हूं जनाबे अली, किसी को मौका देते हैं ना ताकि हमारे बच्चे हमें बताएं कि अरमान ने ज्वाइन कर लिया है, अरमान, बिल्कुल बिल्कुल रुक जाए, असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करता हूं कि इसको चेंज करके देखूं, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ। अबीर आप अपना माइक टर्न ऑन करना प्लीज, मैं चेक करूं आपकी आवाज मुझे आ रही है, अबीर। जी सर, ऑन हो गया। जी अबीर अब आ रही है आपकी आवाज, ठीक है, थैंक यू सो मच अबीर। अच्छा, अब अबीर अब टर्न ऑफ कर दीजिए माइक, ठीक है। अब मुझे बात करनी है जनाब, जजाकल्ला मेरा बेटा, मुझे बात करनी है जनाब अली। अरमान आर यू देयर? अरमान नहीं है क्लास में। जुनेद ने ज्वाइन किया क्लास को? अरमान प्लीज, जी अरमान टर्न ऑन योर माइक प्लीज, अरमान माइक टर्न ऑन कीजिए। ओके फातिमा, ठीक है, अरमान माइक ब्लॉक नहीं है बिल्कुल भी, आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने आपसे कल भी कहा था कि अपने गैजेट्स को रेडी रखें, ये नेटिकेट्स के अगेंस्ट है। आप अपने गैजेट्स को अगर प्रॉपर नहीं रखेंगे तो फिर किस तरह क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे? ट्राई टू अनम्यूट इट। देखिए मैं सॉरी नहीं कहलवाना चाहता प्यारे बच्चों आपसे, मुझे सॉरी नहीं कहलवाना, मुझे पढ़ाना है। तो मैं कैसे बात करूं आपसे, मैं किस तरह सुनूं आपको, क्या आप हमारे साथ हैं या नहीं?
अभी देखें, आपको बता भी रहे हैं कि आप Ctrl+D प्रेस करें, या आप किसी के साथ खुद से गूगल मीट पे मीटिंग करके देखें और ये माइक को यूज करना सीखें। ओके, फलक फलक विकार, प्लीज टर्न ऑन योर माइक। देखिए, मैं सब लोगों को एक साथ तो मौका नहीं दे सकता, बड़ा मुश्किल है। फलक, आर यू देयर? नहीं जी, फलक भी नहीं है क्लास में, आई थिंक। फलक, अनम्यूट कीजिए अपने माइक को बेटा। देखिए, हमें लेक्चर में टाइम वेस्ट हो रहा है इस तरह, अगर आप लोग कॉपरेट नहीं करेंगे तो फिर मैं पढ़ाता रहता हूँ। कैसे ब्लॉक हो सकता है मेरा बेटा? हमने तो ब्लॉक ही नहीं किया, हम क्यों ब्लॉक करेंगे आपका माइक? अबीर भी तो देखें बात कर रहे हैं। ओके एमन। Yes, sir. ओके मेरा बच्चा। एमन, ये बताइए, आपका साइंस बैकग्राउंड है या कॉमर्स से हैं आप? Sir, commerce. पर अच्छा, मैंने अकाउंटिंग में फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है 2 साल। ओके, अच्छा। मेरा बच्चा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल बात नहीं कर रहा, और आपने एज अ कॉमन मैन आंसर करना है, ठीक है? आपने Alright. अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से आंसर नहीं देना मुझे। मुझे बताइए, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में परचेजेस की मीनिंग क्या समझती हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में? खरीदना और मतलब एक्सपेंसेस, लाइक मेरे पैसे जाते हैं। एक्सीलेंट, जबरदस्त। आपने पहला वर्ड बोला है ना, वो बेहतरीन था, वो आउटस्टैंडिंग था। क्या बोला पहला थैंक। वर्ड? खरीदना। जबरदस्त। और BUY, बाय माने भी खरीदना होता है। खरीदना, जबरदस्त। अच्छा, अब एमन, क्या खरीदना? थोड़ा सा क्लियर करोगी, क्या खरीदना? लाइफ एसेंशियल नेसेसिटीज, मेरी वांट्स। नाम नाम लो ना चीजों के, ये इतनी इकोनॉमिक्स वाली बातें क्यों कर रही हो भाई? इकोनॉमिक्स का सॉरी। यूनिट। फ्रूट्स और वेजिटेबल, क्लोथ्स और जबरदस्त, शूज, बुक्स। बेहतरीन, जबरदस्त। अब मेरी बात गौर से सुनोगे एमन। थैंक यू सो मच, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एमन ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आप सब भी मेरे साथ हैं, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। हम दुनिया में कोई भी चीज अपने लिए खरीदें, परचेस करें, कोई सी भी चीज, हम इंग्लिश के 2 वर्ड्स यूज करते हैं। नंबर 1 इज परचेस एंड नंबर 2 इज BUY, बाय। ठीक है अब्दुल मोइस, जबरदस्त। अब अकाउंटिंग में भी अगर इस वर्ड को एज इट इज ले लिया जाए तो फिर अकाउंटिंग आर्ट तो नहीं रहा, फिर तो ये बिल्कुल आम इंसानों की तरह जैसे सब काम कर रहे हैं वैसे ही हो गया। तो अकाउंटिंग ने हमें सिखाया और अकाउंटिंग हमें बता रही है, बिल्कुल अक्सा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बाय रेफर्स टू वेरी स्मॉल स्मॉल कमोडिटीज। लेकिन हम अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करेंगे तो अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम बिजनेस में वैसे तो बहुत कुछ खरीदेंगे। अब क्या क्या खरीदेंगे? अगर तमाम बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं तो गौर से सुने। हम अपने बिजनेस में जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम अपने बिजनेस के लिए कोई जगह भी खरीदेंगे, कोई बिल्डिंग, कोई जमीन, फर्नीचर। हम अपने बिल्डिंग के लिए स्प्लिट AC, क्या कहते हैं, चिलर खरीदेंगे। हम अपने ऑफिस के लिए टेबल्स खरीदेंगे, कैबिनेट्स खरीदेंगे। ठीक है, हम अपने ऑफिस के लिए मुख्तलिफ तरह की चीजें खरीदेंगे। शाह सलीम, एम्प्लॉयर्स थोड़ी खरीदते हैं मेरा बच्चा, है ना? सिस्टम्स खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, कंप्यूटर्स खरीदेंगे, फोटोस्टेट मशीन खरीदेंगे, मशीन्स खरीदेंगे। ओके, क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज खरीदेंगे, और वो चीज भी तो खरीदेंगे जिसे खरीद के क्या करना है, and we will definitely purchase that thing also which we have to sell, वरना बिजनेस कैसे चलेगा? यस, एग्जैक्टली। इसका मतलब है हम अपने बिजनेस में बहुत सारी तरह की चीजें खरीदेंगे, लेकिन एक बात बताओ, वो कौन सी चीज होगी जो हम बार बार
फ्रीक्वेंटली खरीदते रहेंगे, वो क्या चीज होगी? फर्नीचर तो हम शायद 2 से 3 साल में एक बार खरीदेंगे, बिल्डिंग हम वन टाइम परचेज करेंगे, है ना? रॉ मटेरियल महक कहां से आ गया? क्या हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? क्या हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? रॉ मटेरियल मींस आप कोई चीज खरीद के उससे प्रोडक्ट बनाएंगी? नहीं ना महक, हम तो वो चीज खरीदेंगे जिसे उसी हालत में बेचना है। महक आप समझ रही है मेरी बात? आप लोगों के रिप्लाई बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जी। तो बस अब बात को क्लियर करते हैं कि अकाउंटिंग, जब हम मर्चेंडाइज खरीदेंगे, जब हम गुड्स खरीदेंगे, तो अकाउंटिंग यूज करेगी वर्ड परचेजेस। ठीक है महक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गया। अकाउंटिंग क्या वर्ड यूज करेगी? अगर आप लोग मेरे साथ हैं, मैंने इसको हाईलाइट किया है, अकाउंटिंग यूज करेगी वर्ड परचेजेस। अच्छा सर, फर्नीचर खरीदेंगे तो परचेजेस का वर्ड यूज नहीं करेंगे, इंग्लिश में आप परचेजेस का वर्ड ही यूज करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग मर्चेंडाइज के खरीदने के लिए वर्ड यूज करेगी परचेजेस। अबीर, एक्सपेंसेस इज बेसिकली अ हेड ऑफ अकाउंट विच आई विल डिस्कस लेटर। ठीक है, ओके, आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं माशाल्लाह बात, लेकिन या तो खुद कंफ्यूज होते हैं या कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। ओके मेरा बच्चा, yes it is account title, purchases is account title, but right now I am trying to क्या कहना चाहिए, मैं आपको मतलब वो थोड़ा सा फैमिलराइज कर रहा हूँ चीजों, इन वर्ड से, इन टर्मिनोलॉजी से, कि आपको पता हो कि इनका मतलब क्या है। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ परचेज क्यों यूज होगा। देखें, हम अपनी आम जिंदगी में हर चीज के लिए, जैसे कि एमन ने हमें हेल्प की और एमन ने कहा मैं अपनी लाइफ में अपने लिए जो कुछ खरीदती हूँ, अपने घर वालों के लिए जो कुछ परचेज करती हूँ, मैं उसके लिए वर्ड परचेज यूज करती हूँ या BUY बाय यूज करती हूँ। बट मैंने कहा इन अकाउंटिंग अगर हम हर चीज के खरीदने के लिए एक जैसा वर्ड रखेंगे तो हम चीजों को क्लासिफाई तो नहीं कर रहे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। तो क्लासिफाई कैसे होगी चीज? मुख्तलिफ हिस्सों में बांटने से। और क्लासिफाई क्यों करते हैं? बिकॉज क्लासिफिकेशन मेक थिंग्स इजियर। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसका मतलब है अकाउंटिंग कह रही है कि जब आप क्या खरीदो, मर्चेंडाइज। वैसे तो आप बहुत कुछ खरीदते हो। शाज, आर यू विथ मी? सॉरी शीजा, शीजा आर यू विथ मी? मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं बेटा इस वक्त। ओके, तो देखें बात यह है कि वैसे तो हम बिजनेस में पता नहीं क्या क्या चीजें खरीदते हैं। मसलन हमारा फर्नीचर खराब हो जाता है, 3 साल के बाद हम फर्नीचर दोबारा खरीद लेते हैं। हमारी गाड़ियां, हम गाड़ियां, व्हीकल्स यूज कर रहे होते हैं, हमने अपने एम्प्लॉयज को व्हीकल्स दी हुई होती हैं, व्हीकल्स खराब हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, हम और व्हीकल्स परचेज कर लेते हैं। इसी तरह हम मशीनरी यूज कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें यूज कर रहे होते हैं। लेकिन बात यह है कि हर चीज खरीदते हैं, खुद ब खुद नाउजुबिल्लाह नाजिल तो नहीं होती ना, हमें परचेज करनी पड़ती है। तो इंग्लिश में तो हम परचेज करना कहते हैं, बट अकाउंटिंग कह रही है कि जब तुम खरीदो, अब मैं इसको पूरे को हाईलाइट कर रहा हूं, जब तुम क्या खरीदो? जी शीजा बताइए, जब आप क्या खरीदें? यस, मर्चेंडाइज। तो उसके खरीदने को आपने क्या कहना है अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में? परचेजेस। अब क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं, इजाजत है? फातिमा आपको क्लियर है? अब्दुल मोइज आपको क्लियर है? जुनैद अगर क्लास में है आपको क्लियर है? आरिफा आपको भी क्लियर है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। जो बच्चे खुद से बताते हैं, आई एम वेरी मच थैंकफुल। अली मोहम्मद, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, जजाकल्लाह। खुश रहिए। आप लोग खुद बताते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अब मैं किसी का नाम अगर लेना भूल जाता हूं तो बुरा ना माने। हफ्सा से इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे। हफ्सा बार बार बोलती है मैं हफ्सा से बात नहीं कर पा रहा, मैं जरूर मौका दूंगा हफ्सा को। ओके हफ्सा, चलिए हफ्सा को मौका देते हैं। हफ्सा प्लीज टर्न ऑन योर माइक। Yes, sir. Hafsa, please tell me, when you go for purchase of anything, how you purchase things from the storekeeper or from the mart? Sir, पैसे देके। एग्जैक्टली मेरा बच्चा, बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो नॉर्मली वी यूज कैश फॉर परचेजिंग डिफरेंट थिंग्स। ऐसा ही है। अच्छा, क्या आप कभी वालिद साहब के साथ जाते हैं,
अपनी मदर के साथ जाते हैं, अपने बड़े भाई के साथ जाते हैं, तो क्या कभी ऐसा होता है कि वो क्रेडिट कार्ड यूज करते हो? जी सर। है ना? इसका मतलब है वो क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि एक वो भी एक पैसे का वो है, वो वे है। प्लास्टिक मनी वाला कॉन्सेप्ट है वहां पर, जी सर। है ना? बैंक हमारे बिहाफ पे उन्हें पे कर देता है, लेकिन हमने बैंक से एक तरीके से क्या कर लिया, क्रेडिट। इसीलिए उस कार्ड का नाम भी क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट मींस उधार, है ना? पैसे लेना। तो इसका मतलब है हम कितने, नहीं लोन तो बहुत आगे की बात हो जाएगी राविया और रिफा, लोन जो है एक अलग चीज है मेरा बच्चा। पैसे तो निकालना मतलब। यस एग्जैक्टली, यानी उधार पर कोई चीज परचेज करना। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच हफ्सा, You're welcome, sir. सो नाइस ऑफ यू। अच्छा अब देखें मेरी बात सुने मेरा बच्चा, हम दो तरह से चीजों को परचेज कर सकते हैं। चीजों से मुराद मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली इस वक्त मर्चेंडाइज की, ठीक है? क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली मर्चेंडाइज ही खरीदेंगे। व्हेन वी विल स्टार्ट बिजनेस वी विल परचेज all those necessary things which are necessary to operate and perform the business. Yes, महक आदिल says not paying at immediate basis, है ना? इसका मतलब है दो तरीके हो गए, एक इमीडिएटली पेमेंट करना और दूसरा आप पेमेंट को डेफर कर दें, आप कहें हम बाद में पे करेंगे। ओके मेरे बच्चों, तो बस जल्दी से अब कहने लगा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश परचेजेस? When you buy, when you purchase goods from a supplier. What is the meaning of supplier? Have I told you before? Have I told you before? What is the meaning of supplier? मिनाल प्लीज आप बताएंगे अनम्यूट करके, मिनाल खुर्रम। मिनाल अगर आप अनम्यूट करके बताती तो अच्छा होता बेटा। ओके देखें ना, आप मैं जिसका नाम लेता हूं वो कहता है माइक का प्रॉब्लम है, आप लोग अपने गैजेट्स को सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा चलें, अब मेरी बात सुने ध्यान से, आप सब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख दी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जब हम अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा हम अपने बिजनेस को फोकस करते हुए बात करते हैं। यस वी आर द बिजनेस, हम अपने बिजनेस को दिमाग में रखते हुए बात करेंगे। अगर आप सामने वाले के एक्शन को देखेंगे तो आप अकाउंटिंग करते हुए मिस्टेक करेंगे। अगर आप दूसरे के एक्शन को देखेंगे आपका सोचने का अंदाज बदल जाएगा। What is the Shah Salim said? What is the difference between cash purchase and purchase? Word purchase is used for purchasing merchandise, and when you purchase merchandise and pay immediately to whom? To shopkeeper. तो आप उस तरह से खरीदने को कहती हैं कैश परचेजेस। शाज इज इट क्लियर? मैं आगे बढ़ रहा हूं, पहले मुझे बात मुकम्मल करने देना, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो जब हम शॉपकीपर के पास जाएं तो शॉपकीपर, जिसे हम अब नाम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने बोल्ड किया हुआ है सप्लायर। तो सप्लायर कौन होता है? अब सब बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बार। देखें बात यह है, चीजों को एनालाइज करने की दो डायरेक्शन है, एक हम अपने बिजनेस के लिहाज से कर सकते हैं और एक हम सामने वाले के एक्शन के लिहाज से। रिमेंबर व्हेन एवर यू आर परफॉर्मिंग अकाउंटिंग यू विल मेक श्योर दैट यू आर एनालाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर बिजनेस पर्सपेक्टिव। आपने अपने बिजनेस के लिहाज से बात करनी है। तो अब ये मत बोलिए प्लीज कि जो बेच रहा है, जब आप कहते हैं ना जो बेच रहा है, तो बेचना is the function of that person, आप उसका एक्शन क्यों बता रहे हैं? सप्लायर कौन है अब बताइए मुझे दोबारा, हमें अपने एक्शन को एक्सप्लेन करना है। हमारे लिए सप्लायर कौन है? अब आपका जवाब मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब देखता हूं मैं क्या जवाब देते हैं। Yes, Taha said the one who we are purchasing from. It is not necessary that he is producing. It is might be possible that he is also purchasing in bulk quantity.
और हम छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं। जहरा सईदा जहरा सेट डीलर, यानी सर अगर डेबिट कार्ड यूज करेंगे तो वो भी परचेज होगा। बिल्कुल, देखें शीजा, वो तो प्लास्टिक मनी है ना, मैंने अर्ज किया। मैं अभी आपको और क्लियर करता हूं। अभी मैंने क्रेडिट परचेज अभी तक समझाया नहीं है, अभी तक मैं कैश परचेज समझाने की कोशिश कर रहा था। अब मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी तो आपको समझ आ जाए। पहले मुझे ये बता दें, सप्लायर का वर्ड समझ आ गया? सप्लायर कौन है? अब मैं आसान उर्दू में बोल रहा हूं, जिसको समझ नहीं आया वो पूछेगा। सप्लायर, मैं उर्दू में कह रहा हूं, प्लीज गौर से सुन लें और चाहे तो इसको नोट कर लें। अगर किसी बच्चे ने मुझे नेक्स्ट टाइम ये बताया कि सप्लायर वो है जो सामान बेच रहा है, तो मैं कहूंगा यू आर रॉन्ग। मुझे किसी को गलत कहते हुए बड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर तरह से आपके आंसर्स को एकोमोडेट करूं ताकि आप मेरे लेक्चर में इन्वॉल्व रहें। जब मैं आपसे पूछूंगा कि सप्लायर कौन है, आप कहेंगे सप्लायर वो है जिससे हम मर्चेंडाइज, माल तिजारत, मर्चेंडाइज खरीदते हैं। किसका एक्शन बोला मैंने? बताइए किसका एक्शन बोला, जल्दी से बताएं। आयशा, मैंने सप्लायर का एक्शन बताया है यहां पर। मैंने कहा सप्लायर वो है जिससे हम सामान खरीदते हैं। इससे आसान उर्दू और क्या बोलूं मेरा बेटा? सप्लायर वो है जिससे हम सामान खरीदते हैं। तो किसका एक्शन बताया मैंने? इतने सारे लोग जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट। आयशा, क्लियर हुआ जी? अब आपने लिख के भेजा हमारा एक्शन। क्या मैं ये कह रहा हूं कि सप्लायर वो होता है जो हमें माल बेचता है? इस तरह भी तो कहा जा सकता है ना। बट इन दिस सेंटेंस आई एम explaining the action of that person. But when we talk about accounting, in the context of accounting, of business for which we are performing accounting, हम अपने बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम किसी बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, हम कहीं जॉब करते हैं, तो हम अपने बिजनेस को सामने रखते हुए कहेंगे कि हमारे लिए सप्लायर कौन होता है? द पर्सन फ्रॉम होम वी परचेज गुड्स। अब क्लियर है? यस, हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे, लेकिन कौन से बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में? तहा बिजनेस तो वो शख्स भी कर रहा है ना जिससे हम खरीद रहे हैं, हमें अपने बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बोलना है। करीम, वेरी गुड, आपको समझ आ गया है। जिस बच्चे का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो जरूर पार्टिसिपेट करे, वो कम से कम यस लिख के भेजे ताकि मुझे पता चलता रहे। आप सब क्लियर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम कहते हैं क्या, जल्दी से पढ़ लेते हैं। इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अ सप्लायर एंड पेमेंट इज मेड एट द टाइम ऑफ परचेज, that it means we are purchasing on cash, so therefore it is called cash purchases. हम कैश नहीं खरीद रहे, हम मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं, बट किस पर खरीद रहे हैं? ऑन कैश। And the next one is credit purchase. What is credit purchase? If goods are purchased from a supplier and we made a promise to pay in near future, उधार पे परचेज करना, अबीर भाई ने कहा, वेरी गुड, यस वी विल पे लेटर। तो फिर हम सामान लेकर एमन क्या माजरत के साथ भाग जाते हैं? नहीं फातिमा जहरा, बैंक लोन तो अलग चीज होता है। बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो वो एक अलग चीज है। मैं तो कह रहा हूं कि सप्लायर के पास गए, सप्लायर कौन? जिससे हम सामान खरीदते हैं, उसे जाके कहा कि भाई आजकल जरा कोविड-19 की वजह से कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, मैं अभी आपको पैसे नहीं दे सकता, तो आप मुझे सामान दे दो, मैं इंशाल्लाह विद इन 20 डेज, विद इन 1 मंथ आपको पे कर दूंगा। तो अब बताओ, मैंने सप्लायर से क्या किया? बताओ फातिमा, मैंने सप्लायर से क्या किया? उधार किया, और बताओ डील की, और बताओ शाबाश, प्रॉमिस किया। एमन, वेल डन। मैंने सप्लायर से प्रॉमिस किया कि आई विल पे यू इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह। अच्छा, वो एक अलग बात है कि मैं प्राउड पाकिस्तानी हूं, वो एक अलग बात है कि मैं पे करूं या ना करूं, हम उस तरफ नहीं जा रहे, ठीक है। लेकिन काम की बात यह है, देखें अब्दुल मोइस, क्रेडिट कार्ड की तरफ अभी मत जाएं, ठीक है। वो आप
और आपके बैंक के दरमियान क्रेडिट है। क्रेडिट कार्ड का नाम इसलिए क्रेडिट कार्ड है। बट जब हम बात करते हैं ना अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम बिजनेस में जिससे माल खरीद रहे होते हैं ना, थोड़ा सा अगर आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से देखेंगे, जब आप इंशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, तो वहां पे बिजनेस में क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते। क्रेडिट कार्ड तो पर्सनल अपनी जात के लिए होता है। सही है, क्लियर हुआ थोड़ा सा? हाँ, तो नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, तहा नईम साहब, बिल्कुल भी चेक क्रेडिट नहीं है सर। देखें, आप अगर बाउंड्री से बाहर जाते रहेंगे तो मैं पकड़ पकड़ के बाउंड्री में लाता रहूंगा और मेरे पास कोई हल नहीं है। तो कोशिश करें कि जो मैं समझा रहा हूं पहले उसको अच्छे से समझ लें। क्या ख्याल है ना? तो फिर आपको समझने में आसानी होगी। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि आपकी बाउंड्रीज क्या है। आप बाउंड्रीज से बाहर जाएंगे तो फिर हमारी डिबेट थोड़ी सी फजूल लंबी हो जाएगी, है ना? हाँ बिल्कुल, है तो सही, लेकिन बेटा हमें अक्सा, लेकिन हमें इस तरह लेके चलना है ना कि हम बच्चों को समझ भी आ जाए और फिर हम आगे भी बढ़ते रहें। बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना कि ऐसी इस तरह की भी वॉक नहीं करनी। क्या ख्याल है? तो क्रेडिट परचेज क्या है मेरे बच्चों? व्हेन वी गो टू सप्लायर शॉप एंड मेड अ प्रॉमिस दैट वी विल पे यू after 10, 20, 30 days, that means we are making a promise for the payment in future. So when we purchase goods from a supplier and we make a promise, then this type of purchase called credit purchases. बताइए, यहां तक क्लियर है? एक पॉइंट और छोटा सा डिस्कस करके क्लास खत्म करते हैं, टाइम हो गया है। एक छोटा सा पॉइंट और है और समझ जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप सब पर। देखिए अगला नाम क्या लिखा है, जरा पढ़िएगा। क्या लिखा है मेरे बच्चों? अगला नाम बताइए। ट्रेड पेबल, है ना? अब ट्रेड पेबल क्या है, जरा गौर से सुनेंगे, 1 मिनट में समझ जाएंगे, मैं क्लास खत्म कर दूंगा इसके बाद। मेरे बच्चों, जब हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो हम उससे कहते हैं ना, सप्लायर से, सप्लायर को हम एक कमिटमेंट करते हैं, हम एक प्रॉमिस करते हैं, हम उसे कहते हैं कि आई विल पे यू, है ना? जब हमने उससे ये कह दिया कि मैं आपको पे करूंगा, तो इसका मतलब है ये जो प्रॉमिस किया, अकाउंटिंग इस प्रॉमिस को भी अपने पास लिखती है कि हमने कितने लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है, हमें किस किस शख्स को हमें कितने कितने रुपए पे करने हैं। इट मींस ट्रेड पेबल इज बेसिकली अ प्रॉमिस। क्रेडिट परचेजेस क्या था? उधार पर खरीदना। और जब उधार पर खरीदा तो दुकानदार सप्लायर से किया वादा, और उस वादे को कहते हैं, बिल्कुल आयशा, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है अब्दुल मोइस, वो रिटर्न फॉर्म में होता है, ठीक है? ये हमारे डेली बेसिस पर, क्योंकि हम उसी शख्स से सामान खरीदते रहते हैं, पिछले 5 साल से खरीद रहे हैं, बहुत अच्छे से हमें जानता है, हमारे उससे वैसे ही बिजनेस रिलेशन है, तो हम उससे कोई रिटर्न फॉर्म में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। ट्रेड पेबल इज अ वर्बल प्रॉमिस। ट्रेड पेबल इज अ वर्बल प्रॉमिस, इट इज नॉट रिटन प्रॉमिस। ये नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में होता है मेरा बेटा। हफ्सा, अगर इसे आप अपने ऊपर रख के सोचेंगे तो कभी भी समझ नहीं आएगा। फातिमा, भी दोबारा कहता हूं, गौर से सुने। देखें, अगर आप अपने ऊपर रख के सोचेंगी ना, और आप किसी भी जो है मार्ट में चली जाएं, किसी भी जनरल स्टोर पे चले जाएं, किसी भी शॉप पे चले जाएं, एंड इफ यू विल आस्क द सेलर दैट आई वांट टू परचेज ऑन क्रेडिट, तो हो सकता है सेलर बोले उधार मांग के शर्मिंदा ना करें, ऐसे जुमले बोले हम उधार पे नहीं बेचते। तो फिर मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं? मैं एक आम इंसान के लिए नहीं, मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। हम बिजनेस में रोजाना, वीकली लाखों रुपए का सामान खरीदते हैं, मर्चेंडाइज खरीदते हैं। और वो मर्चेंडाइज क्यों खरीदते हैं? मर्चेंडाइज को बेचने के लिए। ऐसा ही है ना? जो मर्चेंडाइज हम परचेज करते हैं वो बेचने के लिए। तो जब हम मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो मर्चेंडाइज अगर हमने जिससे खरीदी उसका नाम है सप्लायर, और सप्लायर से हम खरीदने के बाद बोले अभी पैसे नहीं है भाई, तो हम उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, कोई लिख के वादा नहीं कर रहे। वो भी हमें पिछले 5 साल से जानता है, वो कहता है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, व्हेन विल यू पे? हम कहते हैं इंशाल्लाह वी विल पे विद इन 10 to 20 days। सर इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बड़ी माजरत, मैंने आपको आते हुए नहीं देखा, लेफ्ट होते हुए देखा। मैंने कहा जैसे आप ज्वाइन करेंगे मैं क्लास लेफ्ट कर दूंगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ी माजरत चाहता हूँ बच्चों। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर टुमारो,
Thank you so much. Take care. Fi amanillah. Allah Hafiz. अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो जीते रहो जीते रहो।